Good afternoon, all of you. Yes. Okay. So, our third lesson is going on. Yesterday, I sent you the homework also. If you don't understand, you can ask me through messages only. Because in this class, I'm not going to explain anything extra. What is there, what is remaining. Wait, just wait 2-3 minutes. Baap re. You required a story only. ओके कभी ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि एक बार आज तो जोक्स करेंगे नो स्टोरी एक जोक करेंगे आज ओके ओके जोक्स आल्सो एक्सेप्टेड नाउ यू सी नो प्रॉब्लम so in these holidays I request all of you that every day you have to just read books reading is a good habit once a father asked his son उसने अपने बेटे से पूछा कि आपको कौन सा बुक पसंद है इट्स अ जोक ठीक है डोंट बी सीरियस तो उसके फादर ने उससे अपने बेटे से पूछा कि बेटा आपको कौन सी बुक पसंद है तो उसने बोला पापा मुझे आपकी चेक बुक पसंद है बस सो एक्चुअली दिस इज अ जोक ये लेकिन ऐसा कभी करना नहीं ओके आपको बुक्स में ही इंटरेस्ट रहना चाहिए जिससे आपको नॉलेज गेन रहे सो आज मैंने देखो आप लोगों को एक जोक भी सुना दिया Now it's a story time. I know that you are not going to leave me without story. Even you just don't allow me to continue the lesson third one. अरे already तो ये इतनी अच्छी story है. Better I was just planning that we will finish this story today so that from Thursday again we will just go through our exercises and grammar part is also still remaining. Somewhere we have to complete that also. Okay. No problem. Anyhow, you are not going to leave me. I know better. So better instead of wasting time, I should actually start my lesson. Okay. Don't worry. I'll start a story, but a short story only. Yes. Okay. Once what happened? A honeybee was asked that you make too much hard work and you put too much potential, your energy to make honey. आपको इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हनी बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है सो वंस अ हनी वाज आस्क्ड दैट यू वर्क सो हार्ड एंड यू too much attention too much effort and energy to make and to store honey but then a man comes and steal definitely a man comes and steal it so do you not feel very sad or seeing this that man will come after too many days you just make and after a man comes and just he steals your complete honey so she said definitely yes I feel very sad the honeybee gave a fantastic actually a reply yes I do feel sad but at that moment only then I realized myself and I remind myself that only a man that only a thing a man can do that is a stealing nothing else वो आएगा सिर्फ चोरी करके मेरा हनी लेके चला जाता है nothing he can do okay for me he can just steal my honey but he cannot actually learn the art of making honey वो मेरा हनी तो चुरा के लेके चला जाएगा बट उसको ये नहीं पता कि ये हनी बनाया कैसे जाता है nowadays duplicate honey we are getting from the market original rarely we will get but originality is the original one which will get directly from the honeycombs okay so she said he cannot actually steal the art of my making honey
that I possess, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है. Again, we certainly need to deal with the same cheating peoples all around, in all the circumstances. In anywhere you just move, you will find. Sometimes it happens in the school also, in universities also, in corporate offices also. This thing will go on. But what they just steal it, they just steal the work or plannings what you did it. आप उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते. So it is overall in a practical way, they just do it. They are aware that the people can do the best, that is they can just copy our creation. They just only copy our creation, but not our creativity. They can at best steal our techniques. वो हमारे techniques चुरा सकते हैं. Nowadays, actually, we were not knowing all these techniques. Today, just we are taking a class, this one e-classes, that is just because of help of Borde sir. He trained us perfectly. So this is also today's best technique which we are using. We are sitting at home, and the classes are going on. Okay. So, but technology इतनी develop हो गई है कि by sitting at home the classes are going on. So कहीं ना कहीं मैं भी ये बोलूंगी कि हमने बोर्डे सर से ये टेक्निक्स चुराए हैं. ओके, हम किसी की टेक्निक चुरा सकते हैं, लेकिन हम किसी का टैलेंट नहीं चुरा सकते. They can imitate what we do, but we cannot take away our ability to inspire, which is why I say focus on and grow that which one can steal, not that everything. Simply you just manifest your own result and do it without thinking a negativity. Just think about the positivity. जब हनी भी इतना सोच सकती है कि ठीक है मेरा हनी एक आदमी चुरा के लेके जा सकता है, बट मेरा आर्ट ऑफ मेकिंग हनी तो वो कभी नहीं कर सकता ना. So this only I want to give you a lesson that whatever you are just understanding, how much you know, that is yours only. कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा. आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी लेके आ जाओ. हर एक काम में डेफिनेटली आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा. तो ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए कि हनी बी का भी है. बाहर भी जाओगे आप, आज आपका भी 10th है. आफ्टर 10th अगेन यू हैव टू जस्ट अटेंड वन मोर 12th बोर्ड ऑल्सो. 12th होने के बाद में आपको और उसके बाद सोचना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ. That is also important. So these everythings actually I am going to inform you. Why I am just starting my lesson before giving you these motivational stories? Because you should learn something. After completion of this year, anyhow you are going to move from this school. But you remember as always, these points are going to be in your brain. आप इसको कभी नहीं भूल सकोगे. हमेशा आपको कहीं ना कहीं, आज आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन आपके वो ब्रेन में रहेगा कि हाँ हमको मैम ने ये सिखाया था, हमको मैम ने ऐसे बोला था, हमको मैम ने वैसे बोला था. दीज एवरीथिंग यू विल जस्ट गेट इट. तो ये सारी, मेरा और कोई एम नहीं है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं या क्या है. नो, ये कि आपको एक ऐसा बताती हूँ ताकि आप इससे कुछ डे बाय डे अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट लाओ. इम्प्रूवमेंट लाओगे, पॉजिटिविटी लाओगे, अच्छे से ग्रो होगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, समथिंग बेटर विल हैपन विथ यू. यस्टरडेज स्टोरी आल्सो आई सेड द सेम थिंग. अब आप उसको कितना अपने पास रख के और आगे चल रहे हो वो आप ही लोगों को पता है. जब स्कूल खुलेगा तब मैं बिल्कुल पूछूंगी आपसे कि आप लोग अभी क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो, कितना मेरा मोटिवेशनल स्टोरी से आपको बेनिफिट हुआ है. दैट आई जस्ट कम टू नो आफ्टर व्हेन आई जस्ट मीट यू पर्सनली. So this was the story, actually a short story I made instead of taking a long one, lengthy one. I just decided to take a short so that we will just complete our lesson today if it is possible. Okay, now let me start our lesson. वाह रे हमदर्द. हमें तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें शायद स्टोरीज भी बस ऐसे ही मिल रहे हैं.
कि हमारी स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ साथ जो हमारी ये भी स्टोरीज चल रही हैं, उसमें भी हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है। ओके, सो वो पैराग्राफ फर्स्ट वाला कंप्लीट जो हुआ था पेज नंबर 11 का। नाउ विल स्टार्ट सेकंड पैराग्राफ। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। सो हियर ऑथर कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए। हम लोगों को लगता है ना कि जो हमारे नियर डियर्स वन हैं वो लोग आएंगे ज्यादा वो, बट ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि उससे मिलने के लिए तो वो लोग आए जिनको मेरी दूर दूर तक टांग टूटने से कोई मतलब ही नहीं था। मतलब बस ऐसा एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से वो लोग उनके पास आए, मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। कि कभी क्या हो जाता है, हमारे जो ज्यादा करीब के रिश्तेदार नहीं रहते हैं, ज्यादा दूर के रहते हैं, और हम लोगों को एक फॉर्मेलिटी निभाने के हिसाब से जाना पड़ता है। नहीं तो ऐसा रहता है, अरे हम नहीं गए तो एक रह जाएगा कि अरे हम जानते थे लेकिन आए नहीं, ठीक है कल उनके पास भी हो जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। यही आज आज के पीरियड की मेंटालिटी, 21 सेंचुरी की मेंटालिटी तो बस यही आती है। हाँ वो आए थे तो हम भी जाएंगे, वो नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसानियत रखनी है। बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं, हमने पहले लेसन से यही सीखा है कि ठीक है आप किसी की नेगेटिविटी मत देखो, ये देख के चलो कि उसको शायद उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होगा। तो हमें किसी की प्रॉब्लम से समझने का, ये नहीं सोचने का कि अरे वो नहीं आए तो चलो हम भी क्यों जाएं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि सुख में हम भले किसी के साथ रहे ना रहें, लेकिन दुख में हमदर्द बन के हमेशा हर किसी के साथ रहना चाहिए। तो शायद इसका असर ये होता है कि भगवान हमें दुख कम दे, ना दे तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकूंगी, क्योंकि जहाँ सुख है तो वहां दुख भी साथ साथ में हम लोगों को इस संसार में अपने साथ लगा ही रहेगा। बट शायद उसकी थोड़ी सी लिमिट कम रहे। तो हमेशा ये सोचने का कि मैं अच्छा सोचूं, और हो सकता है अगर मेरी वजह से किसी का भला हो सकता है तो वो जरूर करने का। तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि कई ऐसे लोग आए जो रेयरली में शायद किसी का हाथ या पैर टूटने पे गया होगा, लेकिन वो भी आए मेरे पास में कि हाँ चलो बाबा वो आए थे ना तो हमारे एक एहसान कम हो जाएगा। यानी वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब इसके भी टांग हाथ पैर टूटेंगे तो ताकि हम भी जाएंगे और ये एहसान खत्म हो जाएगा। मतलब हमदर्दी इस तरीके से निभाने वो लोग आए। ऑथर जो ये पैराग्राफ में बता रहे हैं, हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यस, ये बात सही है। अगर आज हम गलत करेंगे किसी के भी साथ में, जाने में या अनजाने में, लेकिन उसकी सजा हमें भुगतनी जरूर पड़ती है। इसीलिए आप लोग कोशिश यही करना, मेरे जो मोटिवेशनल स्टोरीज भी रहती है वो भी यही कहती है कि आप कोशिश करके यही करना कि हम किसी को अपनी तरफ से जानबूझ के प्रॉब्लम ना दें, उसी में हमारी भलाई है। क्यों? क्योंकि आज देखो आप लोग भी वही सीख रहे हो कि वक्त सब पर आता है, अच्छा या बुरा, लेकिन वक्त वो सब लोगों को निकालना पड़ता है। आज पता नहीं ये कोरोना वायरस कहाँ से आया, किससे हुआ, कैसे हुआ, बट भुगतना तो पूरे वर्ल्ड को पड़ रहा है। और जिसके इतने प्रिकॉशंस लेने के बावजूद कहाँ कम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, बट चल तो इसमें सफर तो सभी जन कर रहे हैं। मतलब वक्त तो सब पर आ रहा है। इसीलिए हम लोगों को एक ही सोचना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ कभी भी ना हो, तो शायद हमारी तकलीफें भी कुछ कम हो जाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। यस, कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि पेन इतना हॉरिबल रहता है कि हम लोग सहन नहीं कर सकते। डॉक्टर्स लोग कितने भी एंटीबायोटिक्स दे दें,
लेकिन उनका जो टाइमिंग्स रहता है एक लिमिटेड पीरियड तक ही इफेक्ट रहता है। कि आप जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं तो शायद 4 या 5 घंटे तक हमें पेन महसूस नहीं होता है, लेकिन उसके बाद वापस वो स्टार्ट हो जाता है। और इतनी हेवी डोज की एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स भी प्रिफर नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी दर्द तो सहन करना ही पड़ता है, चाहे वो कहीं पे भी। इंसान कहता है कि बाप रे हमें तो टांग टूटी तो इसका भी दर्द नहीं चाहिए, बहुत भारी है, हाथ टूटा तो नहीं। बिकॉज हर एक पार्ट बॉडी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमें हर चीज ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं बाबा ठीक है हो गया तो हो गया। पैर पैर अगर हमारा टूटा है तो हम हाथ तो हैं हमारे, लेकिन हमें चलने फिरने में इतना प्रॉब्लम जाएगा। तो जो भगवान ने हमें ये पूरा बॉडी दिया है उसका इम्पोर्टेंस है हर एक चीज का। आज एक उंगली भी हमारी कट जाती है टूट जाती है तो हम प्रॉपर खाना भी नहीं खा सकेंगे सिर्फ एक उंगली से। एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं है, कुछ तो भगवान ने सोचा होगा ना बनाते समय भी। इसलिए ही कि ये एक उंगली भी टूट रही है। आप कभी भी बैठते हुए, अभी आपको हॉलीडेज है, यू जस्ट इमेजिन कि आपका अगर थंब नहीं है तो सोचो कि आपको कितनी प्रॉब्लम जाएगी। इमेजिन करते हुए इतना प्रॉब्लम जा रहा है तो अगर रियलिटी में होगा तो वो कितना हॉरिबल होगा। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि दर्द तो सहन करना ही पड़ता है, लेकिन ये जो पार्ट्स रहते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो हर एक चीज के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। एंटीबायोटिक्स का जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि एक एक्सटेंड तक ही डॉक्टर देते हैं। दर्द चाहे कुछ भी रहे, कम या ज्यादा, हमको ही सहन करना पड़ता है। लोग आएंगे, मिलके जाएंगे, इवन हमारे खुद के रियल फैमिली मेंबर्स भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वो हमें हर एक चीज का हेल्प करेंगे, मेडिसिन देंगे, हमारी देखभाल करेंगे, बट हमारा दर्द कोई नहीं ले सकेगा, वो हमको खुद को ही सहन करना पड़ता है। तो ऑथर भी यही कर रहा है, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, वो पेन इतना हॉरिबल रहता है कि हमको नींद आती ही नहीं है। यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो जो मिलने जुलने वाले आते हैं वो भी जगा डालते हैं, हमारी नींद वैसे ही टूट जाती है। खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता मीन्स फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं। मैंने इसके पहले पैराग्राफ में अभी आपको यही बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ बाबा आए थे वो लोग हमारे पास मिलने के लिए, हम भी चले जाएंगे, फॉर्मेलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे उसने हमें खाने पे बुलाया था, हम भी आज बुला दे रहे हैं तो ये फॉर्मेलिटी खत्म है। ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर आप किसी से भी रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, एक तो रिलेशन उतना ही बनाओ कि जितना आप मेंटेन कर सको, नहीं तो आप नॉर्मल अपनी फ्रेंडशिप चलाते रहो, दूर से ही उतना ही रखो कि जितना आप उसको निभा सकें। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है, खास करके वो लोग इतने आने लगे कि जो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आ रहे थे। इन्हें मरीज से कोई भी, इन्हें पेशेंट से कोई भी सहानुभूति नहीं है, इन्हें पेशेंट का कोई भी हमदर्द नहीं है, मतलब इतना वेलविशर नहीं है। किसी कोई कोई रहता है, जितना हमारे फैमिली मेंबर से रिएक्ट करते हैं उतने शायद बाहर वाले नहीं करते। हमारे रिलेटिव्स जितना मतलब रिएक्ट करेंगे उतने और थोड़े जो दूर वाले और जो बहुत दूर वाले हैं वो नहीं कर सकेंगे। तो इनमें से कई ज्यादा तो ऐसे लोग हैं जो इनके हमदर्दी नहीं है, और खास तौर पे वही आ जाते हैं फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कि हाँ हम गए और इससे पूछ के आ गए तो हमारा ये मैटर फिनिश हो गया। ये सिर्फ सूरत दिखाने ही आते हैं, ये सिर्फ अपना बस फेस दिखाने आते, यहाँ हम हमारा चेहरा दिखा के आ गए, उसने देख लिया, खत्म हो गया, अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सही में किसी से रिलेशन निभाना है तो आप उसको प्रॉपर फॉलो करो, प्रॉपर टाइम पे लाओ। प्लीज डोंट पुट द मार्किंग्स ऑन दिस पेज। आई एम रिक्वेस्टिंग, और एल्स from next Thursday onwards I won't take any class. Seriously, you just listen to me. और कोई भी निकाल रहा है हमको पता चल जाता है कि ये किसने निकाला है। सो बेटर नॉट टू डू दिस। तो उसने
कई बार तो ऐसे हो जाता है कि वो सिर्फ सूरत दिखाने आ जाते हैं, हाँ हम गए, हमारा फेस उन्होंने देख लिया, पेशेंट ने देख लिया, हो गया। बट रियल जो एक्चुअल रहता है, अगर हम किसी के हमदर्द बन सकते हैं तो हमें उसके हर एक दुख दर्द में शामिल होना उतना ही जरूरी रहता है। तभी तो कह सकेंगे कि हमारी ये रियल फ्रेंडशिप है, रियल जो हमारा रिलेशन है वो इसे माना जाएगा, ना कि बस एक निभाना है कि हमने निभा दिया और चले आ गए। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अब इसमें ऑथर कह रहा है कि ऐसे में मैंने एक आज एक ऐसा सोच लिया कि मैं ऐसा करता हूँ कि अगर कोई भी आएगा, वो मैं ऑथर कह रहे हैं कि मैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा हूँ, सोने की एक्टिंग करता हूँ, ताकि जो कोई भी आएगा मेरे से मिलने के लिए तो उनको लगेगा कि मैं सोया हुआ हूँ और इसको शायद डिस्टर्ब ना करें, बेचारे को रेस्ट करने दे, पहले ही उसको बहुत तकलीफ है। बट उसकी ऑफिस से ही एक बड़े ऑफिसर थे, वो आ गए उनसे मिलने के लिए, और ये जान वो सोचने लगे कि अरे बाप रे, अभी ये तो सोए हैं, तभी मैं क्या करूं, उन्हें उठाऊं या जगाऊं या नहीं जगाऊं। लेकिन उन्होंने पहले ही क्या किया, धीरे धीरे से उनको उठाने लग गए, उनको धीरे से उठाने लगे। उन्होंने देखा कि ये तो हिल भी नहीं रहे हैं, थोड़ी देर आवाज दिया तो भी नहीं हिल रहे हैं। तो लास्ट में उन्होंने यही सोचा कि अब मैं थोड़ा सा जोर से चिल्लाता हूँ, थोड़ा सा बुलाता हूँ उसको, ताकि उसकी शायद कुछ आंख खुले। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना भी शुरू कर दिया। फिर जब आंख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। अब कई ऐसे डीठ लोग रहते हैं कि उनको पता भी है, भले वो प्रिटेंड कर रहे हैं, ऑथर के हिसाब से वो प्रिटेंड कर रहे हैं, उनको नींद नहीं है, वो कहीं ना कहीं सबसे ये एक्ट करना दिखा रहे हैं कि जो कोई भी उनसे मिलने आ रहे हैं उनको यही लगे कि मैं रियल में सो रहा हूँ और मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं रियल में सो रहा हूँ। लेकिन जो उनसे मिलने आए उनके ही ऑफिस के एक बड़े ऑफिसर, लेकिन उन्होंने तो बहुत ही हद पार कर दी। उन्होंने हिलाना, धीरे धीरे उनसे आवाज देना, हिलाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि ये तो हिल भी नहीं रहे तो उन्होंने फिर से क्या किया, उन्होंने आवाज देना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि ये भी आंख भी नहीं खोल रहे। लास्ट में जो उनसे मिलने आए वो बड़े ऑफिसर, उन्होंने तो उनकी जो टांग टूट गई है उसे ही जोर से दबाने लग गए। अब जो टांग टूटी है उसी पे ही अगर कोई दबाएगा तो दर्द तो होने ही वाला है, क्योंकि ये तो अभी अभी उनकी टांग टूटी है, और वो तो कोई भी रहे तो पेशेंट तो तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली, चीखना मतलब चिल्लाना, सही है, अगर जो टांग टूटी है उसी पे अगर कोई दबाएगा तो उसने ऐसे उठे चीखते हुए और आंख खोलते हुए वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। जैसे ही इन्होंने चिल्लाया तो वो उठे उठे और जो मिलने आए थे तो वो पूछने लगे कि अब आपका दर्द कैसा है। अरे दर्द तो रहने ही वाला है, और एक तो आप पहले ही दर्द है, उनकी टांग टूट गई है, और दूसरा उसी टांग पे आपने जोर से दबा दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि एक तो वो उन्हीं के ऑफिस से ही है तो नहीं बोल पाते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। ऑथर जो है हर एक लोगों का एग्जाम्पल बता रहा है कि कौन कौन उनसे हॉस्पिटल में और कैसे कैसे मिलने आ रहा है, वो सारे अपने फीलिंग्स इस स्टोरी में शेयर कर रहे हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया। वो कैसे आते हैं, जब वो लोग फ्री हो जाते हैं तब वो लोग आ जाते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, क्योंकि ये उनकी नेबर है, मोहल्ले वाले मीन्स उन्हीं की एरिया के। तो और उसका नाम है सोनाबाई, और सोनाबाई हॉस्पिटल में मिलने तो जाती है लेकिन वो अपने चारों बच्चों को भी साथ में लेके जाती है। चारों बच्चों को साथ में
साथ में लेके आई, मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। इसका मतलब ऑथर को पहले से ही पता है कि सोनाबाई और उसके चारों बच्चे कैसे हैं। तभी तो उनको डर लगने लगा कि आज फिर से कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होगी। जिस इंसान को पता रहता है कि ये इंसान अगर आया है मेरे से मिलने के लिए, तो उसकी थोड़ी बहुत तो जानकारी रहती ही है। और एक तो वो सोनाबाई उसी की मतलब एरिया की है, तो उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि शायद अब आज कोई और दुर्घटना न हो जाए। पहले ही मेरी एक टांग टूट चुकी है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। ऑथर ये कह रहे हैं कि आते से ही उसने डायरेक्ट अपने बच्चों को इशारा उनकी तरफ, ऑथर की तरफ दिखाते हुए बोल रही थी, ये देखो तुम्हारे मतलब चाचा जी हैं, तुम्हारे ये चाचा जी हैं। और अपने बच्चों को वो ऑथर से ऐसे इंट्रोड्यूस करवा रही है। ये ऑथर कह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं कि वो सोनाबाई अपने बच्चों को ऐसा इंट्रोड्यूस करवा रही है उन्हें, कि जैसे जब हम कभी चिड़ियाघर जाते हैं, जब हम जू वगैरह में जाते हैं, तो बच्चों को दिखाते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, तो हम छोटे बच्चों को दिखाते हैं, देखो ये बंदर है, ये लॉयन है, ये टाइगर है। तो वो मतलब ऑथर अपने आप को उस चिड़ियाघर से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि वो सोनाबाई अपने बच्चों को ऐसे दिखा रही है, ये देखो ये तुम्हारे चाचा जी है। तो वो रियलाइज कर रहे हैं ऑथर यहाँ पे कि उसका दिखाने का अंदाजा ऐसा था अपने बच्चों को। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो बहुत नॉटी रहते, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। एक एक्सटेंट तक हम उनको फिर भी शांत रख सकते हैं, बट देखा जाए तो बच्चों को हॉस्पिटल्स लेके ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स पहले ही इतने ज्यादा इन्फेक्टेड रहते हैं कि बच्चों को तुरंत उसका रिएक्शन हो जाता है। बट ये कौन सोनाबाई को समझाएगा। सोनाबाई तो खुद तो गई मिलने के लिए हॉस्पिटल में उनसे, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, लेकिन गई तो गई और साथ में वो अपने चारों बच्चों को भी लेके गई। अब बच्चे तो बच्चे, एक कुर्सी पे चढ़ रहा है, एक मेज पे चढ़ रहा है, एक एक टेबल पे चढ़ रहा है, एक चेयर पे चढ़ रहा है, और खूब वो लोग दोनों मस्ती करने लगे। म- बहुत ज्यादा मस्ती करने लगे। सोना और वो इतना यानी जंपिंग करने लगे, चेयर से बेंच, बेंच से चेयर, इतना ज्यादा मस्ती कर रहे थे। और एक बच्चे ने तो हाथ में वो मेडिसिन का बॉटल ही ले लिया और कथकली डांस करने लगे। मीन्स जंपिंग कर रहे, भाग रहे, दौड़ रहे। और मतलब वो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि बच्चे इतना ज्यादा नॉटीनेस कर रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि उनकी मेडिसिन की बॉटल्स लेके उनके बच्चे सोनाबाई के कथकली कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कथकली एक डांस का नाम है। करने लगे। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। अब अब ये दूसरे बच्चे का कंपेयर कर रहे हैं कि अब दूसरा बच्चा, एक दो बच्चे तो पहले ही उन, एक बच्चा कुर्सी और मेज के ऊपर जंपिंग कर रहा है, दूसरा बच्चा दवा की बोतल लेके कथकली कर रहा है, डांस कर रहा। और तीसरे बच्चे ने तो क्या किया कि जो उनकी टांग के ऊपर रेत, कल मैंने आपको बताया था कि उसको ऐसा हैंग किया जाता है ताकि लेग का मूवमेंट ना हो, और जो बोन जो मतलब डैमेज हुई रहती है वो जुड़ जाए जल्दी से। तो इसीलिए उसको एक रेत का, एक सैंड का गनी बैग बहुत हेवी रहता है, उसके साथ में उसको हैंग कर दिया जाता है। तो देखता है ऑथर कि वो उन सोनाबाई का एक लड़का उसकी जो रेत की जो बैग है उसी के साथ बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दिया। बॉक्सिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत तो जो स्ट्रिंग लगा रहता है ना लेग और उसकी बैक के बीच में, उस स्ट्रिंग से थोड़ा भी अगर पैर हिलता है तो पेन का एहसास जरूर होता है। लेकिन ये सोनाबाई के बच्चों को कौन बताएगा।
टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। यस, अब क्या हो गया, जो लड़की, जो सोनाबाई की लड़की, जो मेडिसिन की बोतल उठा के रखी थी और वो दौड़ते दौड़ते उसने गिरा दिया और वो टूट गई। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा और फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। अब वो बोतल तो टूट गया, लेकिन बोतल गिरा, उसका कोई, सोनाबाई को कोई दुख नहीं हुआ। वो थोड़ी देर घूर के, यानी एक स्टक मूवमेंट में, गुस्से से थोड़ा सा अपने बच्चे की तरफ देखी और फिर बाद में ऑथर की तरफ देखते हुए बोल रही है कि भैया अभी आप ना हमें पेड़े खिलाओ। तो ये पहले ही ऑथर वहां पे इतने पेन से पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, और ये सोनाबाई, एक तो उनकी मेडिसिन का बोतल भी उसके बेटी ने तोड़ दिया और ऊपर से ये कह रहे हैं कि आप मुझे पेड़े खिलाओ। क्यों? क्योंकि दवा की बोतल, अगर वो उनकी सोच है ऐसा सोनाबाई की, कि समझो अगर दवाई की बोतल टूट गई यानी बीमारी गई। और 2 घंटे के बाद में वापस से सोनाबाई कह रही है कि मैं अभी घर जा रही हूँ और वापस फिर से आऊंगी। लेकिन ये सुन के ऑथर को फिर से एक डर लगने लगा कि अभी आए और ऐसा हो गया, वापस फिर से आने की बात कर रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। ये सोनाबाई का एक अंधविश्वास भी है जो कह रही है। ऐसा ऐसा शायद होता नहीं है, लेकिन उनकी एक सोच थी कि हाँ, दवा की बोतल टूट गई मतलब आप अभी अच्छे हो जाने वाले हो। ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन वो अपने बच्चे को गुस्सा नहीं कर सकेगी तो क्या करेगी। ऐसा करके उसने कंटिन्यू किया और वहां से गई और उसके बाद ये कह के गई कि मैं वापस फिर से आऊंगी। सो समवेयर हियर वी हैव टू स्टॉप। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, बेटर यू जस्ट मैसेज मी, आई विल सेंड यू। एंड नेक्स्ट वी विल बी हैविंग आवर क्लास ऑन थर्सडे। आप ये लेसन को रीड करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। wherever you are finding any problem, you just better ask with me. And tomorrow there is a test. I'll just give you the topics. Tomorrow only I'll send it. It's a 10 marks paper. Our first lesson, Bharat Mahima. You have to just do it and send me back. I'll check it and send it to you again. So this is the homework, but this third lesson also you have to read how much I finished. Next remaining part we will just start on Thursday in our next class. Okay, with the same timings. So if you are having any doubts, again I am informing, better you just ask me. First lesson tomorrow there is a test. Okay, now I'll just conclude my here meeting. Okay, thank you all of you for listening me. Stay home, stay safe, respect your teachers and obey your parents.